Okay, let's start. A very good afternoon. Good afternoon. तो वी आर ऑन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. ध्यान देना बेटा. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स एक टेक्निकल टॉपिक है जिसके तहत हमने बेलमेंट पूरा ख़त्म किया, लीन ख़त्म किया, बेलमेंट का पूरा डिस्कशन, बेलर, बेली. उसके बाद हमने थोड़ा बहुत एजेंसी स्टार्ट किया था और एजेंसी की बेसिक्स कंप्लीट करते हुए हम आ गए टॉपिक टूवर्ड्स इंडेमनिटी एंड गारंटी. अगर आप देखते हो बेलमेंट मतलब गिविंग द पोजेशन फॉर अ पर्टिकुलर purpose, and when the purpose is done the goods must be returned back is called as bailment. Giving possession is bailment, giving ownership is sale. If sale then no bailment, if bailment then no sale. सिंपल बात है. बेलमेंट में दो पार्टीज है, बेलर बेली. जो पोजेशन देता है बेलर, जिसको पोजेशन दिया है बेली. बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के चार एलिमेंट्स है. डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी फॉर अ पर्पस, देन कॉन्ट्रैक्ट एंड डिलीवरी. पर्पस पूरा होने के बाद गुड्स मस्ट बी रिटर्न और डिस्पोज बैक. बेटा कोई बात नहीं, फोन साइलेंट पे आ जाएगा बेटा. उसके बाद अगर आप देखते हो बेलमेंट के टाइप्स है ग्रेटिट्यूअस एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस, एंड एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, एंड म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज. डिलीवरी कैन बी कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक और एक्चुअल. अगर आप देखते हो ड्यूटीज ऑफ बेली मस्ट टेक रीजनेबल केयर, मस्ट रिटर्न द goods on time, must not make unauthorized use of the goods, must return the profits or accretions. Then if you see, not to set adverse title, and basically वो सब चीज़ें हमने ड्यूटीज़ में और बेली में पढ़ा था. ड्यूटीज़ ऑफ बेलर में पढ़ा था टू डिस्क्लोज द नोन फॉल्ट्स, इन सर्टन केसेस अननोन फॉल्ट्स, इज लाइबल टू पे द expenses, to bear the losses for premature termination of the contract, and to take the goods on time. ये सब हमने पढ़ा था ड्यूटीज ऑफ बेलर में. देन हमने पढ़ा था कि कौन से केस में टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट होता है. when the purpose is done, when the goods are destroyed, unauthorized use, death of the party. ये सब टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के पॉइंट्स थे. उसके बाद हम आए थे लीन. लीन मतलब कीपिंग द पोजेशन until the payment is received, that is called as lien. It is general lien and specific lien. Whereby if the goods on which the work is done, that goods is kept, that is general lien. And when general money is outstanding for which any goods is kept is general lien. करेक्ट है बात. उसके बाद हमने जंप किया बेटा ये पूरा बेलमेंट पढ़ के एजेंसी की ओर. एजेंसी मतलब बेसिकली द बिजनेसमैन कैन नॉट रिप्रेजेंट एवरीवेयर, देयरफॉर he appoints someone to represent him in the business transaction. That person representing is called as agent, and who is being represented is called as principal. Creation of agencies of three types. We have done of two types: by express agreement, by ratification. Express agreement is by words, it can be oral or written. जहाँ पर आप देखते हो power of attorney is the example. Agency by ratification मतलब act is done and the approval is taken later on, that is called as agency by ratification. यहाँ तक हमने agency पढ़ा, इसके आगे पढ़ा नहीं. हमने जंप किया और हम आए थे indemnity and guarantee. Indemnity contract is a contract where one party, करेक्ट है, promises to save other party from losses, whether the loss is incurred by himself or by any other third party. Indemnity contract में दो parties है, indemnifier and indemnity holder. Who will make good the losses is indemnifier. The best example is insurance company. and indemnity holder जिसके losses good किया जाएगा. अगर आप देखते हो सिमिलरली हम आगे बढ़े गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स पर आए. Contract to perform the contract or pay the debt on behalf of third party default is called as guarantee contract. In guarantee contract there are three parties: surety, debtor and creditor. Who gives the guarantee is surety, who for whom the guarantee is given is debtor, and to whom the guarantee is given is creditor. There are different types of guarantee contract: retrospective effect and prospective effect. अगर आप देखते हो कि एग्जिस्टिंग डेट की गारंटी दी गई है तो रिट्रोस्पेक्ट, और फ्यूचर में डेट देने वाले उससे पहले ही गारंटी दी है तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. सिमिलरली अगर आप देखते हो स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी. अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन की गारंटी है तो स्पेसिफिक गारंटी, एंड सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की है तो कंटिन्यूइंग गारंटी. उसके बाद हमने देखा व्हाट इज द नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी. देयर आर थ्री पॉइंट्स विच वी कवर्ड. इट इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल, इट इज को एक्सटेंसिव, एंड इट मे बी लिमिटेड.
मुझे बताओ प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? डेटर की है। और अगर उसने पे नहीं किया तो श्योरिटी की लाइबिलिटी कब अराइज होती है? इमीडिएटली व्हेन द डेटर मेक्स डिफॉल्ट इन द पेमेंट। करेक्ट है बात? और सिमिलरली डेटर लाइबल तो श्योरिटी लाइबल, डेटर डिस्चार्ज तो श्योरिटी डिस्चार्ज। डेटर की लाइबिलिटी अनलॉफुल है तो श्योरिटी की लाइबिलिटी भी अनलॉफुल है। डेटर ने पार्टली पे किया तो रिमेनिंग पार्ट के लिए श्योरिटी लाइबल रहेगा। तो इट इज को एक्सटेंसिव एंड इट मे बी लिमिटेड बाय स्टेटिंग द टाइम और अमाउंट। ये हमने 3 पॉइंट्स पूरे कवर किए बेटा। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। अगर आप देखते हो इंडेमनिटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट? एक, बट गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट, डेटर टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू श्योरिटी, श्योरिटी टू डेटर। उसके बाद इंडेमनिटी में कितने पार्टीज? 2, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। गारंटी में कितने पार्टीज? 3, श्योरिटी, डेटर एंड क्रेडिटर। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस है टू कंपेंसेट द लॉस, बट गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस है टू गिव अश्योरेंस अबाउट द परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट। सिमिलरली अगर आप देखते हो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनीफायर कैन नॉट फाइल अ केस ऑन थर्ड पार्टी। मैंने बोला ना कि मेरा अगर रोड एक्सीडेंट हुआ तो दूसरे बंदे जिसकी गलती है, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली केस कर सकता है क्या? नहीं, मेरे थ्रू कर सकता है, बट डायरेक्टली केस नहीं कर सकता। बट कैन श्योरिटी फाइल अ केस ऑन डेटर? यस। ये हमने डिफरेंसेस पढ़ के शायद स्टॉप किया था। इज इट ट्रू? करेक्ट है। तो आज ये टॉपिक का बड़ा पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर छोटा मोटा बच जाता है, फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को और 2-3 लेक्चर्स चाहिए तो आपका टॉपिक ही खत्म हो जाता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स है। ध्यान से। अब सबसे पहले राइट डाउन हेडिंग, राइट्स ऑफ श्योरिटी। राइट्स ऑफ श्योरिटी ये थोड़ा सा ड्राई है बट आपको करना तो पड़ेगा, ऑप्शन ये। राइट्स ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी का डेटर पे क्या राइट है, श्योरिटी का क्रेडिटर पे क्या राइट है, और श्योरिटी का को श्योरिटी, 2-3 लोग ने मिलकर गारंटी दी है तो आपस में क्या राइट है। तो हु इज श्योरिटी और श्योरिटी वॉट एवर यू प्रोनाउंस, बोलो हु गिव्स गारंटी। उसका डेटर की तरफ कुछ कर्तव्य और राइट है, उसका क्रेडिटर की तरफ भी कुछ राइट है, और उसका जो को श्योरिटी है, ये 2-3 जन ने मिलकर गारंटी दी है तो आपस में भी कुछ राइट्स है। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 3 पार्ट। करेक्ट है। तो डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। पूरा चार्ट बना लो, पहला एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, कोई बीकॉम नॉलेज नहीं ले रहे बेटा, हम सादा नॉलेज नहीं ले रहे। थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको आई गेस S5 TY में भी आने वाला है, जितना मुझे समझता है। मतलब यू विल बी बेनिफिटेड इन योर ग्रेजुएशन। क्लियर? थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा। बीकॉम जैसा एक दिन पहले पढ़ के जाके एग्जाम नहीं दे के आना है। थोड़ा एफर्ट लो तो बीकॉम के भी स्कोर बढ़ेंगे, CS का भी स्कोर बढ़ेगा, ओवरऑल ग्रोथ रहेगी आपकी। अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, then against creditor, second right, against creditor and against co-surety, against co-sureties। करेक्ट है। पहला अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, फिर अगेंस्ट क्रेडिटर एंड अगेंस्ट को-श्योरिटीज। करेक्ट। उसके नीचे डेटर के नीचे 2 राइट है, राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन, नए नए वर्ड्स है, कभी सुने भी होंगे आपने पहले। एंड सेकंड है राइट ऑफ इंडेमनिटी, राइट ऑफ इंडेमनिटी, मैं बोल रहा हूँ ना, राइट ऑफ इंडेमनिटी। राइट ऑफ सब्रोगेशन एंड राइट ऑफ इंडेमनिटी। राइट अगेंस्ट क्रेडिटर में 2 राइट है, राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज and right to set off,
और को श्योरिटीज में दो राइट है, करेक्ट। कौन से दो राइट है? राइट टू कंट्रीब्यूशन एंड राइट टू क्लेम शेयर और राइट टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी। राइट टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी। कुछ लोग अभी भी गणपति के मूड में हैं, एब्सेंट दिख रहे बेटा, कुछ कुछ चेहरे गायब है, करेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। इट्स वेरी सिंपल, डोंट वरी, बट थोड़ा ध्यान देना है। चलो 3 कैरेक्टर्स लेके उनकी बैंड बजाते हैं। बोलो क्यों, कौन से 3 कैरेक्टर्स? बैंड नहीं बजाते हैं? हाँ बोलो। एक किरण हो गए, ठीक है। हुज सलोनी? अच्छा सलोनी, स्पेक्स। एंड कार्तिक को अटका दो लड़कियों में एक लड़की बना लेना। ये बॉडी है। सपोज ये कार्तिक है, ये सलोनी है और ये किरण है। सलोनी का मुंह ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा बिजनेसमैन का एसेट होता है जिस पे वो एसेट देख के भी रोता है? वेरी सिंपल। अरे कोई गुडविल को देख के रोता है क्या? अपना इतना कितना खराब गुडविल है कि वो रो रहा है। कौन से एसेट को देख के उसको दुख दर्द होता है? अरे बैलेंस शीट पे एसेट है, डेटर, ऑब्वियस बात है। उधारी है एक तो, पैसा जो आज आना था वो बाद में आएगा, फिर उसके पीछे भाई पैसा दे पैसा दे पैसा दे पैसा दे। ऐसा एसेट एसेट ही है ना, पैसा आना बाकी है मतलब एसेट है। इट इज समथिंग विच यू विल रिसीव। ओके, गुडविल देख के राज सरांनी सांगितले मला एक सांग की गुडविल बघून कोणी असं मला की इतना कितना खराब है तुम्हारा गुडविल, मुझे बताया। गुडविल देख के तो खुश होना चाहिए कि मेरा वर्थ कितना है भाई, ऐसा रहना चाहिए। अम्मा बुकिश नॉलेज मत लगाओ, बुकिश नॉलेज कुछ भी हो सकता है, रियलिटी में तो गुडविल कभी भी अच्छा है ना यार। हाँ आप बोलेंगे फिक्टिशियस है, उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा गुडविल खराब है मतलब। इन शॉर्ट ऐसा गुडविल होना चाहिए कि बिजनेस लॉस मेकिंग भी है बट लोग 400 करोड़ देने को रेडी है, ऐसा वो गुडविल होना चाहिए। मतलब लोग इतना पैसा देने को रेडी है, फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट देख के बात करते हैं ना हम। तो कोई बिजनेस आज जैसे उबेर ओला लॉस में है बट आज लोग खरीदने को रेडी है, तो गुडविल तो अच्छा है यार मेरे हिसाब से। मैं मेरा नॉलेज बोल रहा हूँ, बुकिश नॉलेज आपके पास, ठीक है ना बात। तो गुडविल देख के कोई नहीं रोता है, सिर्फ डेटर्स देख के रोता है ज़्यादातर, कि भाई ये आदमी एक तो जो पैसा आज देना तो कल दे रहा है, उसमें भी पता नहीं देगा कि नहीं देगा। तो ऐसा एसेट है जहाँ पर देखकर हम सही में रोते हैं। तो अब यहाँ पर देखो सिंपल लॉजिक है, अगर क्रेडिटर इज किरण एंड डेटर इज सलोनी, ठीक है ना बात, डेटर, तो यहाँ पर किरण विल क्राई बाय लुकिंग टू सलोनी। पैसा बाकी है ना देख के, और इसने मेरा पैसा बाकी रखा, अब तो दिया नहीं है, 2 लाख बाकी है, 5 लाख बाकी है, सही बात है क्या नहीं है? अरे टेंशन रहता ना कि पैसा आएगा कि, क्लियर बात है। तो अब ये देखो सिंपल लॉजिक है, अब सलोनी को देखते हुए कि एक्सपीरियंस खराब रहा कि पैसे नहीं आए, तो यहाँ पर इसने डिमांड किया कि प्लीज़ गेट अ गारंटर, प्लीज़ गेट अ गारंटर। कार्तिक ने आकर गारंटी दिया कि अगर सलोनी ने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसा दूंगा। तो ये कार्तिक क्या बन गया? ऑब्वियसली श्योरिटी। सिंपल, हम रिपीट कर रहे हैं। किरण क्या है यहाँ पर? क्रेडिटर। और सलोनी कौन है बेटा? देख सलोनी डांसिंग बिकॉज उसके पैसे उसको देने नहीं देने देखेंगे।
समझेगा मेरी बात। और ये देखो ये रो रही है और ये चिल बॉय, बिकॉज ही डजेंट मैटर, देख लेंगे जो होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ भी हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। समझे मेरी बात, कैरेक्टर वैसे बनाए हुए। अब एक तरीके से समझना क्लियर कट, अगर यहाँ पर इसने डिफॉल्ट किया, सलोनी ने क्या किया बेटा, डिफॉल्ट किया, तो मुझे बताओ कौन जिंदाबाद, श्योरिटी जिंदाबाद। मतलब क्रेडिटर, सॉरी, कार्तिक को पैसे देने पड़ेंगे। और अगर कार्तिक ने किरण को रीपे किया, सब 1 लाख का माल खरीदा था, 1 लाख 2 महीने में आना था, 2 महीने में सलोनी ने पैसे नहीं दिए, तो कार्तिक ने एज अ गारंटर पैसे दे दिए। नाउ कार्तिक स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। कार्तिक स्टेप्स, मतलब उसका मतलब ही नहीं किरण को बोले जूते निकाल, चल तेरे जूते आज से मेरे जूते हैं, कौन से भी रहने दो, ऐसा थोड़ी ना होगा। इट मीन्स दैट, ये कहावत है, स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, मतलब जो क्रेडिटर्स के राइट है वो सारे राइट किसको मिल जाएंगे, श्योरिटी को मिलेंगे। क्रेडिटर्स के राइट किसको मिलेंगे, श्योरिटी। किरण के राइट्स किसको मिल जाएंगे, कार्तिक को मिलेंगे। ये कहावत है, उसको बोलते हैं सबरोगेशन, सब्सटीट्यूशन। अब किरण के सारे, किरण की जगह कौन सब्सटीट्यूट हो गया, कार्तिक। अब कैन ही रिकवर द सेम अमाउंट फ्रॉम सलोनी, यस। इसको बोलते हैं राइट ऑफ सबरोगेशन। कितने लोग को समझता है बात, पक्की बात है। 1 मिनट रुको, एक पूरी खिचड़ी पक गई यहाँ पे, इसलिए रेड कलर मैंने लिया है कि भाई समझे कि कौन सा रब करना है। अब उसको पैसे मिल गए तो ये रो नहीं रही है, रो नहीं रही ना, पैसे मिल गए ना, अब ये रो रहा है, अब ये रो रहा है तो ये इसके अगेंस्ट, अरे इसकी रुको तो 2 मिनट सुना, ये रो रहा है, तो अब ये रो रहा है क्योंकि इसको पैसे रिकवर करने हैं। तो दुख दर्द किसके साथ है बेटा, श्योरिटी। ना घर का ना घाट का, उसका कोई इंटरेस्ट था नहीं, कुछ मिला नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। अब इसको रिकवरी करना पड़ेगा द मनी फ्रॉम सलोनी। क्लियर हो गया बात। तो ये देखो स्लाइड, 2 मिनट रीड करो, 2 मिनट, गड़बड़ नहीं। Subrogation means substitution of one person for another person, also known as right to stand into the shoes of creditor. It doesn't mean के, समझ गए ना मेरी बात, it's a proverb type समझो, करेक्ट है। When surety has paid the debt, surety कौन था अपने एग्जाम्पल में, कार्तिक, he will vest with all the rights which the creditor had against the debtor. एंड श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ ऑल द सिक्योरिटी। अगर कल उठकर सलोनी ने 2 लाख का माल खरीदा, उसमें 50,000 का गोल्ड गिरवी रखा था, सिक्योरिटी दिया था, तो वो गोल्ड पर अब राइट किसका आएगा, कार्तिक का। दैट इज कॉल्ड एज श्योरिटी। जो भी क्रेडिटर्स के राइट थे वो सारे राइट किसको ट्रांसफर हो गए, श्योरिटी। सबरोगेशन मीन्स टू सब्सटीट्यूट, एक पार्टी की जगह दूसरे पार्टी को अब पूरे राइट है, अब वो पार्टी जो श्योरिटी है उसको सिक्योरिटी भी मिलेगा, उसको पैसे भी मिलेंगे, वो केस भी कर सकता है, पैसे भी रिकवर कर सकता है। लिखो, राइट डाउन हेडिंग, राइट ऑफ सबरोगेशन। Right of subrogation, right of subrogation। देख के लिखो बेटा, मेहनत करो थोड़ी, लिखो लिखो।
Subrogation means substitution of one person for another person. Subrogation means substitution of one person for another person. Point number one. It is also a right to stand in the shoes of creditor. You have to imagine कि आप श्योरिटी हो, आपने पैसे भरे, तो आप क्रेडिटर के जो राइट है वो आपको मिल जाएंगे. थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो तो आपको थियरी ईजी जाएगी. हम लोग थियरी को सिर्फ रीड करते हैं बट दिमाग नहीं लगाते. एक्चुअली मोर ऑफ प्रैक्टिकलिटीज आर इन्वॉल्व इन थियरी. बच्चे बोलते हैं थियरी इज थियरी. नो, इट इज़ मोर ऑफ प्रैक्टिकल. जितना प्रैक्टिकल रेलेवेंस के फॉर्म में पढ़ोगे उतना जल्दी थियरी क्लिक होगा. ये मेरी बात मानो. 11-12 का कंसेप्ट छोड़ दो बेटा. आप थोड़ा मैच्योर्ड हो गए तो 11-12 में कैसा आदत है, लर्न करो, हाँ टिक टिक ये आता है टिक. वहाँ पे ऑप्शंस भी होता है ना बीकॉम एग्जाम्स में. 11-12 में मैंने बोर्ड्स में ऑप्शंस होते हैं कि चलो ये नहीं, वो चैप्टर भी फिल्टर कर सकते हैं, 10 में से एक ही चैप्टर छोड़ के भी जा सकते हैं. बट वो सब टेक्निक यहाँ कुछ काम नहीं आने वाला है. पता चला जो चैप्टर आप छोड़ के गए उसके ऊपर ही 40 क्वेश्चन आ गए. भरोसा नहीं है. आता है ऐसा, हुआ ऐसा कुछ पेपर्स में. तो कोई कुछ नहीं, वो बोलता मैंने ये प्रिपेयर किया, वो चैप्टर है, बोलता मैंने ये प्रिपेयर. अरे प्रोफेशनल एग्जाम में सब पढ़ के जाना है. यू डोंट नो व्हाट चैप्टर विल कम अप. इट इज ऑल्सो नोन एज राइट टू स्टैंड इन द शूज ऑफ क्रेडिटर. आगे लिखना है थर्ड पॉइंट. व्हेन श्योरिटी हैज पेड डेट, when surety has paid debt, he is vested with all the rights. He is vested with all the rights which creditor had against debtor. जो भी क्रेडिटर के पास राइट है वो सारे राइट्स उसको वेस्ट हो जाएंगे, उसको मिल जाएंगे लॉ की भाषा में. He is vested with all the rights which creditor had against debtor. Surety is entitled to the benefits of all securities. जो भी सिक्योरिटी दी थी, भाई चांस गोल्ड दिया था, कुछ एफडी गिरवी रखी थी, वो सारे राइट किसको मिल जाएंगे? श्योरिटी को. करेक्ट है. तो वहाँ लिखने का श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू ऑल द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी मेड अवेलेबल टू क्रेडिटर बाय डेटर. डेटर ने जो भी क्रेडिटर को सिक्योरिटी दी है, अगर क्रेडिटर को पूरे पैसे मिल गए तो वो सिक्योरिटी पे राइट किसका रहेगा? श्योरिटी का रहेगा. इसके अलावा जो भी लॉस हुआ, डैमेज हुआ, खर्चा हुआ, लीगल एक्सपेंस हुआ, कैन द श्योरिटी रिकवर फ्रॉम डेटर? यस. उसको बोलते हैं इंडेमनिफिकेशन. कंपेंसेट करना, रीइंबर्स करा के लेना जो उसने एक्सपेंसेस इंकर किए, उसको जो जो ट्रॉमा हुआ, उसके वजह से जो खर्चा हुआ, वो सारा एक्सपेंस श्योरिटी किससे रिकवर करेगा? डेटर से. तो वो सेकेंड राइट आपके चार्ट के हिसाब से, पहला राइट क्या था? राइट ऑफ सबरोगेशन. सेकेंड राइट क्या बेटा? राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन. राइट डाउन हेडिंग सेकेंड. राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन. इंडेमनीफाई करना, सारा एक्सपेंस लेना. हाँ, अगर 2 लाख रुपए भरने थे, श्योरिटी ने गलती से 3 लाख रुपए दे दिए, तो एक्स्ट्रा पैसे के लिए डेटर लाइबल, नॉट लाइबल? और श्योरिटी की गलती है. भाई 2 लाख की था तो 2 लाख देना था. व्हाई हैव यू पेड मोर? करेक्ट है. डेटर बोले तो कुछ भी भरेगा और मैं भरूंगा, ऐसा थोड़ी ना होगा. जो राइट अमाउंट है वितने के लिए कौन लाइबल है बेटा? डेटर लाइबल है. तो कैन श्योरिटी रिकवर द अमाउंट? यस. इसको लॉ में क्या बोलते हैं? इंडेमनीफाई और इंडेमनिफिकेशन. करेक्ट है. मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, वही लिखना बेटा. मैं लिखना श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू, श्योरिटी राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन में पॉइंट 1, श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू recover all the sums from debtor. Surety is entitled to recover all the sums from debtor. Second point, amount wrongfully paid cannot be recovered. Amount wrongfully paid cannot be recovered. Wrongfully paid cannot be recovered. खत्म. पहली बात, जो भी क्रेडिटर के राइट है श्योरिटी को मिलेगा, और श्योरिटी का जो भी खर्चा हुआ है वो डेटर से रिकवर करेगा. ये हो गया श्योरिटी एंड डेटर. अब मैं किसकी बात करूंगा? श्योरिटी एंड क्रेडिटर. करेक्ट है. तो राइट डाउन हेडिंग. कौन सा हेडिंग आएगा? राइट अगेंस्ट क्रेडिटर. राइट अगेंस्ट क्रेडिटर
राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। अब ये देखो, सपोज एग्जाम्पल है, किरण ने सलोनी को 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल सप्लाई किया और इसने बोला मुझे दोनों चाहिए, मुझे गारंटर भी चाहिए और मुझे कुछ सिक्योरिटी भी चाहिए। 50% अमाउंट की मुझे क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो सलोनी बोलती मेरे पास सिक्योरिटी है बट गारंटर नहीं है। मैं आज सिक्योरिटी देती हूँ, गारंटर ढूंढती हूँ कि मेरे लिए जो गारंटी लेने को रेडी है। समझे मेरी बात? हु इज किरण? क्रेडिटर। हु इज सलोनी? डेटर। एंड नाउ द क्रेडिटर इज डिमांडिंग बोथ गारंटर प्लस सिक्योरिटी। अरे कोऑपरेटिव बैंक से अगर आप लोन लोगे ना, वो लोग बोले गारंटर भी लाओ, प्रॉपर्टी भी गिरवी रखो, दोनों लेते हैं वो लोग, मालूम है आपको? इसलिए कोऑपरेटिव बैंक के लोन महंगे हो जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ दो, जो इनिशियल खर्चा है ना, 50 लाख का लोन लेने जाते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट है, मजबूरन वहाँ से लेते हैं लोन। कभी आपका अपना सबका देखो, क्लाइंटल कोई स्ट्रांग है, कोई वीक है। समझे मेरी बात? फाइनेंशियली हर कोई स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, तो बेचारे मजबूरन कोऑपरेटिव बैंक से ले लेते हैं। प्राइवेट बैंक में आपको क्या देना है, सिर्फ को एप्लीकेंट देना है कि हम 2 लोग मिलकर अप्लाई कर रहे हैं, हम दोनों लोन भरेंगे, जॉइंट प्रॉपर्टी है। समझे मेरी बात? और प्रॉपर्टी गिरवी रखा, गारंटर का कोई टेंशन नहीं। अब गारंटर कोऑपरेटिव बैंक में क्या, प्रॉपर्टी भी गिरवी रखो प्लस गारंटर लाओ, और गारंटर के खर्चा ही एग्रीमेंट का 50,000 आ जाता है। अरे जब 50,000 आपको ऐसा शेल आउट करना है प्रोसीजर्स में, सोचो आपके पास हाथ में 50,000 है, जैसे आप दुबई ट्रिप जा सकते हो, आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी का पैसा दिया है, तो कहीं ना कहीं समझना कि गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज 50,000 सिर्फ एग्रीमेंट खर्च हो जाता है बैंक के साथ। इज इट अ बिग अमाउंट? येस और नो? इफ यू कीप दैट 50,000 विथ योर सेल्फ, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। सिंपल बात है, शायद आपके 50,000 में 2 EMI निकल जाए। ओके तो अब बहुत बार क्या होता है, दोनों मांगा जाता है, सिक्योरिटी भी दो और गारंटर भी दो। सिंपल बात है, क्योंकि क्या होता है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी, दे आर इंटरेस्टेड इन मनी। बैंक्स को क्या है भाई, प्रॉपर्टी बिकना चाहिए और पैसा आना चाहिए। तो बहुत बार प्रॉपर्टी बिकता नहीं है, और वो इसलिए गारंटर पैसा देगा, भाई तू प्रॉपर्टी रखा हमें चलेगा। तो इसीलिए वो दोनों डिमांड कर रहे हैं। तो सलोनी ने क्या बोला कि मेरे पास सिक्योरिटी है, अपना वो सिक्योरिटी अपन क्या बनाते बेटा, गाय, एकदम हट्टा कट्टा, जो भी है, इंटरनेशनल गाय, पतली गाय, स्लिम गाय। ओके तो अब मेरी बात समझो, ये एकदम इंटरनेशनल कॉम्पैक्ट गाय है, आपको जगह ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इंपोर्टेड गाय रही बेटा कि जहाँ 10 गाय बैठते हैं वहाँ पे 20 बिठा सकते हो, तो जगह का रेंट बच जाएगा। और दूसरी बात है, दूध की क्वांटिटी भी डबल। समझे मेरी बात? तो अब ये इंपोर्टेड गाय 1 लाख रुपए की, सिंपल बात है। अब इसने ये गाय को गिरवी रखा किरण के यहाँ पे, किरण का वैसे भी रेस्टोरेंट वहाँ बाहर पार्क कर दिया, भाई दूध निकालेंगे और लोगों को चाय पिलाएंगे, सिंपल बात है। अब यहाँ पे समझना कि इसने गाय गिरवी रखा। अब थोड़े दिन बाद सलोनी को कार्तिक मिल गया क्लास में, बोले यार तू मेरे लिए गारंटी ले, बोले डन, मैं तो खाली ही बैठा हूँ, गारंटी। समझे मेरी बात? तो अब यहाँ पर कार्तिक ने आके गारंटी दी। कार्तिक को ये बात नहीं मालूम था कि सिक्योरिटी भी दी है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करना चाह रहा हूँ। कार्तिक इज नॉट अवेयर दैट सिक्योरिटी इज गिवन, और उसने बोला मैं 2 लाख रुपए की गारंटी देता हूँ, टेंशन मत लो, और मैं जिम्मेदार हूँ अगर सलोनी ने पैसे नहीं दिए। समझे मेरी बात? अब यहाँ पे ऑब्वियसली कार्तिक बन गया श्योरिटी, और डेटर कौन है? सलोनी, और क्रेडिटर कौन है? किरण। ये क्लियर हो गया बात? अब क्या होता है, डिफॉल्ट हुआ। डिफॉल्ट हुआ, सपोज एग्जाम्पल कार्तिक ने पैसे भर दिए, करेक्ट है? तो मुझे बताओ, सिक्योरिटी कैन बी टेकन और कैन नॉट बी टेकन? कैन बी टेकन, वेदर इज अवेयर और सिक्योरिटी पे राइट किसका रहेगा? कार्तिक का रहेगा। सिंपल बात है। तो 2 लाख रुपए अगर किरण को मिल जाते हैं, तो ये जो सिक्योरिटी है, एकदम खिचड़ी पक गई, 1 मिनट रुका, ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी किसको मिल जाएगी? यहाँ पर कार्तिक को मिल जाएगी। कार्तिक कैन फाइल अ केस ऑन किरण एंड रिकवर द सिक्योरिटी इफ किरण इज नॉट गिविंग द सिक्योरिटी। समझे? पॉइंट नंबर 1 क्या था? देखो चार्ट, देखो चार्ट देखो बेटा। राइट ऑफ श्योरिटी, राइट अगेंस्ट डेटर, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। राइट अगेंस्ट डेटर में कितने राइट है? 2। राइट ऑफ सबरोगेशन, जो भी क्रेडिटर के राइट वो किसको मिलेंगे? श्योरिटी के। एंड कैन श्योरिटी फाइल अ केस ऑन डेटर? यस। और जो भी श्योरिटी का खर्चा हुआ, कैन ही इंडेमनीफाई फ्रॉम डेटर? यस। ये होगा राइट अगेंस्ट डेटर।
अभी मैं श्योरिटी और किसकी बात कर रहा हूँ, क्रेडिटर। तो जो भी सिक्योरिटी, गोल्ड, गाय, जो भी मिला होगा किसको, क्रेडिटर को, कैन द श्योरिटी रिकवर द सिक्योरिटी, यस। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, सिक्योरिटी 2 लाख की नहीं, 1 लाख की है। हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सारा पहला अधिकार क्रेडिटर का है। किरण कैन टेक 2 लाख एंड रिटर्न द सिक्योरिटी, और कैन टेक 1 लाख एंड कीप द सिक्योरिटी। समझे मेरी बात? तो वो कौन डिसाइड करेगा, क्रेडिटर। हु सुपीरियर हियर, क्रेडिटर। और अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है कि सिक्योरिटी एडजस्ट करना पड़ेगा और बाकी रिमेनिंग अमाउंट के लिए श्योरिटी लायबल है तो लायबल है, अदरवाइज साइलेंट है तो कौन डिसाइड करेगा, क्रेडिटर। इज इट वेरी क्लियर? अब सुनो मेरी बात, मेरे पास 2 क्लाइंट है। एक क्लाइंट रॉ मटेरियल खरीदना चाहता है, एक क्लाइंट रॉ मटेरियल बेचना चाहता है, बट दोनों भी अनजान पार्टी। मैंने ही बोला अरे ये सप्लायर अच्छा है, मैंने बायर अच्छा है, तुम दोनों मीट कर लो। वो दोनों मेरे ऑफिस में बैठे हैं और मेरा कोई संबंध नहीं, आगे ज़बरदस्ती गले में पड़ गए। समझे मेरी बात? मैंने अच्छे के लिए बोला कि क्लाइंट ग्रो करेंगे तो अपनी भी ग्रोथ होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। तो क्लाइंट को मैंने मिलाने की कोशिश की, बोला नहीं सर आप मीटिंग में हो, मतलब मेरे ऑफिस में आ जाओ। मैं कहा ट्रैवल करूँगा। एक तो लोग है ना, ट्रैवल में टाइम बहुत बर्बाद होता है। एक मेरी बात मानो, मैं भी ट्रैवल करता हूँ, सही में बर्बाद होता है। आई ऑक्यूपाई दैट टाइम। वो कैसे ऑक्यूपाई, वो मेरा टेक्निक है। समझे मेरी बात? तो अभी एक समझना कि डेटर क्रेडिटर बैठा है और मैं बैठा हूँ, अब दोनों बातचीत कर रहे हैं, 4 लाख रुपए का मटेरियल आना बाकी है। समझे मेरी बात? मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट क्या था, मेरे क्लाइंट से मेरा 4 लाख फीस आना बाकी है। मेरे क्लाइंट से 4 लाख फीस आना बाकी है, वैसे ही वो दे नहीं रहा है। मेरे भाई जो है जिसको 4 लाख का मटेरियल चाहिए, मैं बोलता पैसा मत दे, उसको माल सप्लाई कर। कस्टमर की तरह मैंने मेरे भाई को इंट्रोड्यूस किया। समझे मेरे बात? ये दिमाग लगाया। और दोनों मेरे क्लाइंट है, मेरा कज़न मेरा क्लाइंट है और मेरा क्लाइंट है, आउटसाइडर। समझे मेरी बात? अब यहाँ से 4 लाख आना बाकी है। अब मैंने भाई को बोला तू एक काम कर लेना यार, तू उसे माल खरीद ले। उसने पैसे नहीं दिए तो मेरा भी तेरा पैसा अटका देंगे। समझ में आ रहा है रोल क्या बोल रहा हूँ? देखो ABC, ये C को इससे 4 लाख आना बाकी है। क्लियर हो गया बात? A मेरा कज़न है, मैंने उसको बोला इससे तू माल खरीद ले, 6 लाख का माल तुझे वैसे भी खरीदना है। ये बोलता गारंटी चाहिए, मतलब मैं श्योरिटी बन जाता हूँ, टेंशन मत लो, तो इसको माल दो। करेक्ट? अब सिंपल लॉजिक है, मेरे भाई ने पैसे नहीं दिए, मैंने ही उसको बोला मत दे। अब ये आया बोले 6 लाख चाहिए, मतलब 6 लाख में से 4 लाख फीस बाकी है, माइनस करो। मेरा भाई मुझे देने ही वाला है। समझे मेरी बात? दिखाने के रूप अलग अलग है। 6 लाख में तुमसे 4, बोले नहीं सर वो तो अलग है, ये अलग। एडजस्ट द रिसीवेबल अगेंस्ट पेएबल। मुझे पेएबल कितना है, 6 लाख, रिसीवेबल कितना है, 4 लाख। इसको एडजस्टमेंट को बोलते हैं सेट ऑफ। क्या बोलते हैं बेटा? कैन आई सेट ऑफ द रिसीवेबल अगेंस्ट पेएबल? कैन द श्योरिटी एडजस्ट द 4 लाख रुपीज अगेंस्ट 6 लैक्स? ये सेकंड राइट हो गया, राइट ऑफ सेट ऑफ। समझे मेरी बात? ऐसे करके हम पैसा रिकवर करते हैं। रियल लाइफ में ऐसा होता है बेटा, किसी को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ये आना बाकी है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा एक एडिटर है, वो बैंगलोर में बैठता है, दोस्त है, अच्छा दोस्त है, वो पहचानता है, मतलब ही इज़ एम्प्लॉय देयर बट गुड डिज़ाइनर। ये सारे नोट्स वगैरह का प्लानिंग उसका करना है। अभी आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो नोट्स के लेवल बहुत अलग रहता है, भयंकर अलग रहता है। ठीक है? आजकल हैंड रिटन नोट्स आने लग गए, आपको तो मालूम ही है कि हैंड रिटन मतलब पूरा हैंड रिटन है, आपको उसका कॉपी मिलेगा। जो मैंने एक्चुअल में लिखा है उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी की है कि आपको लगेगा सर ने ही लिखे, हैंड रिटन, और एक्चुअल में कुछ चैप्टर्स मैंने लिखे, ये फैक्ट बात है। तो समझो हैंड रिटन नोट्स वो डिज़ाइन कर रहा है। मेरे दोस्त ने कहीं ना कहीं क्या किया है, उसको पैसे दिए, 50,000 पैसे दिए। ओके, मैं उसका गारंटर बन गया कि मैं बेसिकली लाइबल हूँ, उसने पैसे नहीं दिए तो मैं दे दूंगा। मेरे दोस्त से ही मुझे 30,000 आना बाकी है। ठीक है ना बात? डिज़ाइनर ने डिफ़ॉल्ट किया, मैं पैसा दूंगा नहीं, तो मेरा दोस्त मुझसे पैसा मांग रहा है, तू बीच में इन्वॉल्व था, तेरे बोलने पे मैंने पैसे दिए डिज़ाइनर को। मतलब टेंशन मत ले, 50,000 है ना, मैं देता हूँ, बट 50,000 में तुझसे ही 30,000 आना बाकी है। बोले वो अलग है, वो अलग नहीं है। 50,000 माइनस 30,000, आई विल गिव ओनली हाउ मच, 20,000। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेट ऑफ। क्या बोलेंगे? सेट ऑफ। लिखो नीचे, राइट ऑफ सेट ऑफ। एक मिनट, क्या हुआ है? पहला नहीं हुआ है क्या?
हाँ तो रुको रुको एक मिनट, एक ही मिनट बस, इनको स्लाइड देता हूँ। ये संतोष बहुत डिस्टर्ब करता रहे, क्या है सुनना पड़ता मालिक लोग के। हाँ पहला राइट, राइट टू क्लेम सिक्योरिटी। हाँ अरे पहला राइट, एक मिनट, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर है, उसके अंदर राइट टू क्लेम सिक्योरिटी, ऑरेंज केबल है। राइट टू क्लेम सिक्योरिटी लिखना चालू करो। अगर क्रेडिटर के पास सिक्योरिटी, कैन श्योरिटी टेक इट? यस, वही है। गुस्सा नहीं होना है। सी पहली बात, अगर कल उठकर डेटर जो है गाय की सिक्योरिटी दे रहा है
और ये क्रेडिटर बोलता है मुझे गाय की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। जो सिक्योरिटी उसको सही लगता है, गोल्ड लगता है तो गोल्ड, मैं तो एग्जाम्पल में गाय लिख रहा हूँ, बट रियलिटी में वो कुछ तो मॉनेटरी फॉर्म में लेगा ना। ज़्यादातर क्या लेगा, गोल्ड, एफडीज, उसके सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज उसके बाद गिरवी करा के ले सकता है। समझे मेरी बात? तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, गाय इज जस्ट एग्जाम्पल। ऑब्वियसली कल उठ के कोई ज़बरदस्ती बोलेगा ये कोई कचरा है, गार्बेज है, ये गार्बेज का भी पैसा है, एक ट्रक ला के गार्बेज डम किया, बोले इसकी कीमत 1 लाख रुपए, लो। कौन क्यों लेगा? वो डिपेंड करता है ऑन द क्रेडिटर। क्रेडिटर किस में कंफर्टेबल है उसके हिसाब से आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। करेक्ट है। सेकंड राइट लिखो बेटा। सेकंड राइट इज राइट ऑफ सेट ऑफ। सेकंड राइट इज राइट ऑफ सेट ऑफ। राइट ऑफ सेट ऑफ। माइक चेक हो रहा ना बेटा? हाँ, तो लिखो सेट ऑफ मीन्स व्हाट? एडजस्टिंग रिसीवेबल अगेंस्ट पेएबल। लिखो, लिखो रे, लिखो। बहुत बात करती है। लिखो लिखो। अच्छा, मैं अभी से बात कर रहा था, तो एग्जीक्यूटिव में ना मैं दिसंबर वाले जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए डेली टारगेट्स रन कर रहा था बेटा। डेली टारगेट मतलब मैं आपको दूंगा क्या आज का डाइट प्लान है। डाइट प्लान मतलब आज यही भोजन में खाना है। खाना मतलब पढ़ाई की बात चल रही है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कभी सिंपल टॉपिक, कभी मिक्सचर, कभी कुछ। और ऐसा करके मैं उनका 2 महीना ये रन कर रहा हूँ बेटा। समझे मेरी बात? तो रन कर रहा हूँ तो उनका बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। ऑल इंडिया लेवल 2000 बच्चे फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, जिनका दिसंबर एग्जीक्यूटिव है। तो 1-2 स्टूडेंट सेड एंड 1-2 ऑल कॉल्स मैसेजेस ऑल्सो सेड कि स्टार्ट फॉर फाउंडेशन एज वेल, वेदर CMA और CS। करेक्ट है कि भाई मैं तुमको टारगेट दूंगा दिन का 2 घंटा ये पढ़ने का, मेरा डाइट प्लान रहेगा, वो प्लान के हिसाब से तो आप हेल्दी रहोगे। नहीं तो आप पढ़ते जा रहे आपको पता नहीं कि क्या चल रहा है। तो शुड वी स्टार्ट और नॉट स्टार्ट? आर यू कंफर्टेबल फॉर इट? बट यू हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। चलेगा? तो मतलब पूरा सितंबर अक्टूबर मेरे हिसाब से जो मैं बोलूँगा वो पढ़ के आने का। डन है क्या? चलेगा, मैं प्लान करता हूँ, आपको बताता हूँ। ऐसे अनप्लान नहीं होता वो चीज़ें, बैठ के पूरा मेरे को भी प्लानिंग करनी पड़ती है, ऐसे कुछ भी बोल के नहीं होता है। मैं लेट यू नो बाय मंडे, ठीक है? बट अगर जो मैं मेरे सब्जेक्ट का बोलूँगा ना भाई, मुझे बाकी का मालूम भी नहीं है, डिमांड सप्लाई नहीं, नो नो नो, वो डिमांड सप्लाई मैं बताता ना, ऐसा वो वाला कुछ नहीं। हाँ चलो, तो ये हो गया राइट ऑफ सेट ऑफ। 1 मिनट, हम क्या पढ़ रहे हैं? राइट ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी का राइट अगेंस्ट डेटर। डेटर अगर वो डेटर के लिए पैसा भरता है तो क्रेडिटर्स की जगह कौन सब्सटीट्यूट होगा? श्योरिटी। इसको क्या वर्ड है? सबरोगेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सबरोगेशन। तो मुझे बताओ, विल द डेटर गेट, विल द श्योरिटी फाइल अ केस ऑन डेटर? यस। ऑल द राइट्स ऑफ क्रेडिटर विल बी गिवन टू श्योरिटी। एंड जो भी श्योरिटी का खर्चा होगा, कैन यू इंडेमनीफाई फ्रॉम डेटर? यस। इसको राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन बोलते हैं। अगर आप देखते हो श्योरिटी का राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर को जो भी सिक्योरिटी मिला, कैन ही क्लेम, कैन द श्योरिटी क्लेम अगेंस्ट द क्रेडिटर? यस। और कुछ भी रिसीवेबल अगेंस्ट पेबल है, कैन दी क्लेम द सेम? यस। करेक्ट है। अब लास्ट जो बचा है, राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। लिखो हेडिंग, राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। को श्योरिटी का मतलब क्या है? सपोज सलोनी के लिए कार्तिक और सपोज सदगुरु दोनों ने गारंटी ली, तो मुझे बताओ ये दोनों क्या बन जाएंगे? को श्योरिटी। एक श्योरिटी है, 2-3 है, 2-3 है। व्हेन फॉर द सेम डेट, एक ही डेट के लिए, अलग अलग डेट के लिए नहीं है। समझे मेरी बात? वही पैसा बाकी है, बट उसी डेट के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने गारंटी दी है, या 2 या 2 से ज़्यादा श्योरिटी है, तो वो क्या बन जाएंगे? को श्योरिटी। तो सबसे पहले को श्योरिटी का मीनिंग लिखोगे आप, नीचे लिखना है, वहीं पे राइट में उसमें मीनिंग लिखना है। व्हेन 2 or more persons, when 2 or more persons give guarantee,
when two or more persons give guarantee for same debt, they are called as co-sureties. They are called as co-sureties. When two or more person give guarantee for same debt, they are called as co-sureties. Are you able to understand this? Correct है? अब सिंपल बात है, अगर रेशियो डिसाइड हो सकता है 3:2, समझे, 1:1, मतलब हाफ, एग्जैक्टली 50-50%, 60-40 ये लाइबल है. बट अगर रेशियो डिसाइड नहीं है तो दे आर इक्वली लाइबल. अगर 1 लाख बाकी है तो दोनों को 50,000 देना पड़ेगा. समझे मेरी बात? डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एब्सेंट है. ये दोनों ने गारंटी दे दी कि मैं भी लाइबल, ये भी लाइबल. कौन कितना लाइबल वो नहीं बोला, तो दे आर व्हाट, इक्वली लाइबल. तो वहीं पे नीचे लिखना है, all co-sureties are equally liable all co-sureties are equally liable in the absence of contract. Equally liable in the absence of contract. ठीक है. अब उनके राइट्स, दो राइट है. राइट टू कंट्रीब्यूशन, अगर मैंने पूरे पैसे दिए, कैन आई क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर? यस. सपोज कार्तिक और सदगुरु ने मिलकर सलोनी के लिए गारंटी दिया और किरण ने 2 लाख रुपए का माल सप्लाई किया. कल उठ के सलोनी ने पैसे नहीं दिए तो कार्तिक और सदगुरु को पैसा देना पड़ेगा. और सपोज कार्तिक ने पूरा 2 लाख दे दिया, कैन कार्तिक क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर को श्योरिटी? यस. याद आ रहा, जॉइंट लाइबिलिटीज. डेविल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जॉइंट राइट्स एंड जॉइंट लाइबिलिटीज. तो ये जॉइंट प्रोमिसर हो गए. तो अगर एक ने पूरा पैसा दिया तो कैन ही क्लेम द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर? यस. सिंपल बात है. और अगर सिक्योरिटी एक को मिला, कैन अदर ऑल्सो क्लेम अ राइट इन द सिक्योरिटी? सपोज एग्जाम्पल, कार्तिक ने 2 लाख रुपए किरण को पे कर दिए और किरण ने जो सिक्योरिटी आया था गोल्ड का वो कार्तिक को दे दिया. कैन सदगुरु ऑल्सो क्लेम राइट इन द सिक्योरिटी? क्योंकि दोनों ने वादा किया तो दोनों को सिक्योरिटी पर राइट है. तो अगर एक को सिक्योरिटी मिला तो उतना ही प्रोपोर्शनेट राइट किसका रहेगा? को श्योरिटी का रहेगा. इट्स सिमिलर टू जॉइंट लाइबिलिटीज. याद आ रहा है क्या? तो उसमें लिखो पहला राइट, राइट टू कंट्रीब्यूशन. राइट टू कंट्रीब्यूशन, कुछ लिखने की जरूरत नहीं इसमें. अब बोर्ड पे देखो, देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल्स के साथ. एग्जाम्पल्स में इजी हो जाता है. ठीक है. पहला थियरी, ध्यान दो बेटा, कोई लिखेगा नहीं. व्हेन वन को श्योरिटी पेज एंटायर डेट, कार्तिक ने पूरा पैसा भर दिया, ही कैन रिकवर इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर को श्योरिटी. कैन ही रिकवर मनी फ्रॉम सदगुरु? सेम है, बहुत सिंपल है यार. करेक्ट. एग्जाम्पल, ए बी सी आर को श्योरिटीज टू डी फॉर 3,000 रुपीज लेंड टू ई. डी ने ई को पैसा दिया और डी को गारंटी किसने दी? ए बी सी. करेक्ट है बात. ई मेक्स डिफॉल्ट, ई ने पैसे नहीं दिए. ए बी सी आर लाइबल एज बिटवीन देमसेल्फ टू पे 1,000 ईच. अगर ए ने 3,000 दे दिया, कैन ए रिकवर फ्रॉम बी एंड सी? सिंपल है. ये लिखाऊंगा नहीं मैं, रिपीटेड है. उसके नीचे, हाउएवर अंडर कॉन्ट्रैक्ट दे में फिक्स लिमिट. वो लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मेरी लाइबिलिटी रहेगी, मैं इतना ही लाइबल हूँ या मेरा इतना ही परसेंटेज लाइबिलिटी है. कैन दे डिसाइड? या पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? इक्वली लाइबल. सेकेंड पॉइंट बोल रहा है प्रोपोर्शन. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? देखो एग्जाम्पल, अमर हैज बोरोड 1,000 फ्रॉम बैंक. अकबर एंड एंथनी हैव गिवन गारंटी इन द रेशियो ऑफ 3:1. उन्होंने आपस में लाइबिलिटी फिक्स कर लिया. 3:1 का मेरा रेशियो है. 3/4 कौन लाइबल है? अकबर. 1/4 कौन लाइबल है? एंथनी. तो ऑन डिफॉल्ट ऑफ अमर, अकबर इज लाइबल टू पे 1,000 का 3/4 इज 750 एंड एंथनी 1/4 इज 250. तो पहला पॉइंट क्या है? इक्वली लाइबल. कैन दे फिक्स द लिमिट? यस. करेक्ट है. तो ये 2 लाइन में लिखो, लिखो इसके अंदर ही. राइट टू कंट्रीब्यूशन. पॉइंट नंबर 1, कैन रिकवर इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर को श्योरिटी. can recover
equal contribution from other co-sureties. Can recover equal contribution from other co-sureties. Simple बात है. और second point, they may fix the limit of their liabilities. They may fix the limit of their liabilities. They may fix their limit of their liabilities. They may fix their limit of their other liabilities. Last point, last right, second right. Right क्या क्या था पहला? Right against co-surety. Right क्या? Right to claim contribution. And second right, right to share the benefits of security. Right to share the benefits of security. Right to share the benefits of security. इसमें कुछ नहीं बोल रहा. अगर एक श्योरिटी को सिक्योरिटी मिला तो दूसरा उसमें क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है. अगर सपोज 2 लाख रुपए क्रेडिटर से आए, गोल्ड आया, तो कार्तिक के बाद 2 लाख का गोल्ड आया, तो सदगुरु भी उसमें सिक्योरिटी क्लेम कर सकता है. नथिंग टू राइट इन दिस. करेक्ट है. तो हमने बेसिकली, हाँ, सेक्शन नंबर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज मैंने उसमें डाला रहेगा, बट नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. तो एक काम करो, उसमें एक काम करना है. सबसे पहले राइट्स क्या पढ़ रहे हैं हम? श्योरिटी के राइट्स. कितने कैटेगरीज है? 3. अगेंस्ट डेटर, अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट को-श्योरिटी. एक श्योरिटी का डेटर पे क्या राइट है? राइट ऑफ सबरोगेशन. जो भी क्रेडिटर का राइट है वो डेटर का राइट है. समझे मेरी बात? और दूसरा क्या? राइट टू इंडेमनीफाई. जो भी खर्चा हो गया वो श्योरिटी डेटर से क्लेम कर सकता है. ये हो गया पहला. उसके बाद एक श्योरिटी का किस पे राइट है? क्रेडिटर. क्रेडिटर से वो सिक्योरिटी क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है. और अगर उसका कुछ पैसा आना बाकी है, कैन ही सेट ऑफ अगेंस्ट पेबल? यस. ये हो गया राइट ऑफ सेट ऑफ. एंड राइट ऑफ को-श्योरिटीज. अगर कॉन्ट्रैक्ट एब्सेंट है तो दोनों इक्वली लाइबल है. और कॉन्ट्रैक्ट में रेशियो मेंशन है तो वो लिमिट सेट करके अपने रेशियो में लाइबल रहेंगे. और कोई भी श्योरिटी को सिक्योरिटी मिला तो दूसरा श्योरिटी भी उसके लिए लाइबल रहेगा. सिंपल बात है. थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे. रिवाइज से पहले जितने भी जून वाले बच्चे हैं, कितने जून वाले बच्चे हाथ ऊपर करना. बेटा जो मैं टारगेट दूर रहा ना, अगर आपने फॉलो किया तो यू विल बी गेट अ रैंक. दैट्स माई गारंटी. समझे मेरी बात? तो जून वाले, दिसंबर वाले तो आएंगे, बट उनको बहुत सारा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना है. ये डेली टारगेट के अलावा. तो जितने जून वाले उनको भी फॉलो करना है. 2 महीना मेहनत ले लो. दिवाली आ रही है, दिवाली के बाद आराम करो 1 महीना. समझे मेरी बात? जो जून वाले हैं, दिसंबर वाले नहीं. आराम करो. तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप लोग को तो पढ़ना है, बट उनको 1 महीना रेस्ट है, वापस उनको मेहनत करना है. वो अगर करते हैं तो रैंक के चांसेस 100% बढ़ेंगे. इतना मैं आपको बोल सकता हूँ. सिंपल बात है. तो लेट्स रिवाइज. वर्चुअल जो देख रहे हैं वो स्टॉप करेंगे, बट वहाँ पे रिवाइज करेंगे. आप लोग यहाँ पे इमीडिएटली रिवाइज करेंगे. स्टार्ट रीडिंग. जितना हो गया